Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. And in the series of soil fertility lecture, today we'll discuss about nitrification. And in previous lectures, we have discussed about nitrogen cycle. And in nitrogen cycle, there are various processes like nitrification, denitrification, mobilization, immobilization, mineralization, leaching loss, ammonium fixation, volatilization losses. So we will discuss these processes one by one, and out of this process now we will first discuss about nitrification, and in this lecture we will discuss about what is nitrification and which organisms are involved in this nitrification, how this process is carried out, what is the impact of nitrification on soil, and what is the fate of this nitrate, and what is the importance of this process, and what are the factors which affect nitrification. And this nitrification is very important, and in many examinations questions are asked from this topic. So now discuss nitrification, and it is very important process in nitrogen cycle. If we see nitrification is biological oxidation. So first one, it is a biological process. It means some microorganisms are involved and it is oxidation process. Okay, so यहाँ जो oxidation हो रहा है nitrogen compounds का reduction नहीं हो रहा है. So some microbes are involved and these microbes are autotrophic, chemoautotrophic microorganism, chemoautotrophic. और लिथो वी कैन से जो दूसरा नाम है इसका लिथो ऑटोट्रॉफिक. सो सिंस दीज आर ऑटोट्रॉफिक, दैट्स वाई दे ड्राइव देयर कार्बन सोर्स कार्बन फ्रॉम CO2 एंड देयर एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रन और आयंस. ओके, एंड इन दिस केस ऑफ नाइट्रिफिकेशन आयंस आर अमोनियम एंड नाइट्राइट. तो ये एक आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, उनका नेचर क्या है. तो वो नेचर क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक. तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अपनी एनर्जी ले रहे हैं वो आयन से ले रहे हैं एंड कार्बन सोर्स इज CO2. तो ये जो CO2 से ले रहे हैं. देखिए, अगर फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक आर प्लांट जो अपना कार्बन कहाँ से लेते हैं, CO2 से लेते हैं और एनर्जी फोटोसिंथेसिस से लेते हैं. तो ऑटोट्रॉफ में भी दो होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ. फोटो ऑटोट्रॉफ क्या हुआ, प्लांट्स हुए जो अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से, और कीमोऑटोट्रॉफ दे ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट. तो यहाँ जो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है एंड दिस ऑक्सीडेशन इज कैरीड बाय माइक्रोब्स, दैट्स व्हाई इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन नॉट केमिकल ऑक्सीडेशन. तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन, सिंपल ऑक्सीडेशन, बायोलॉजिकल रिडक्शन और सिंपली केमिकल रिडक्शन. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन. तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत एग्जामिनेशंस में इसी से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो दिस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इज 2-step प्रोसेस. इन फर्स्ट स्टेप, अमोनियम आयन is converted into nitrite ion, and in second step nitrite ions are converted into nitrate ion. Okay, so ammonium ions are present in soil either by mineralization, ऑर्गेनिक मैटर से जो मिनरलाइजेशन हुआ है उससे अमोनियम आयन आया हो, या क्या हो सकता है हमने जो फर्टिलाइजर अप्लाई किया हो उससे अमोनियम आयन आया हो. ओके, तो सोर्स में भी मिनरलाइजेशन और फर्टिलाइजर. सो अमोनियम आयन्स आर इन सॉइल एंड this is oxidation. Okay, so it react with the oxygen and then nitrite ions, this NO2, are released. Okay, and this beside nitrate some water is there and hydrogen ions are released. Hydrogen ions are released. If you see in balance form, then it is 2 ammonium, 3 oxygen, 2 NO2, 2 water and 4H plus. Okay, so this is the chemical reaction. तो ये हमने देखा in chemical reaction what is important, ammonium ion, oxygen, then nitrate ion and water and hydrogen ion. Okay, and this process is mediated by microbes
कौन से माइक्रोब्स हैं? मैंने बताया कीमो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, एंड मैं उनका नाम लिख दे रहा हूं। एंड मोस्ट कॉमन इज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ओके, नाइट्रोसोलोबस, नाइट्रोसोलोबस, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोस्पाइरा, एंड नाइट्रोसोबिवरियो। These are chemoautotrophic microbes and the most common is involved in nitrosomonas. तो ये बहुत एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। सो दीज ऑल आर बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से ही प्रोसेस होता है। क्या ये पूछा भी जाता है कि जो नाइट्रिफिकेशन है इसमें कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व रहते हैं? बैक्टीरिया, फंगस, एक्टोमाइसिटीज। तो जो ये प्रोसेस है किससे है? बैक्टीरिया से है। एंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इज नाइट्रोसोमोनास एंड सम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया हैं जो कार्बन किससे लेते हैं? ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, तो वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, बट देयर कंट्रीब्यूशन इज लेस, ओके। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नाइट्रोसोमोनास, ओके। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ओके। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड, okay. So whenever there is a nitrification and in the first step, this is the first step of nitrification, hydrogen ions are released. तो क्या होगा? जो सॉइल इन्वायरमेंट होगा, सॉइल सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, और जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे तो एसिडिटी क्या होगी? सॉल्यूशन की बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच क्या होगी? कम होगी। तो इस कारण से इससे क्या होगा? एसिडिफिकेशन होता है, एसिडिफिकेशन होगा ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो जब भी हम अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालते हैं और नाइट्रिफिकेशन होता है तो हमेशा क्या होगा? एसिडिफिकेशन होगा, एसिडिटी वहाँ की इंक्रीज करेगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो उसमें उस इन्वायरमेंट में एसिडिटी बढ़ेगी। हालांकि ये एसिडिटी क्या होती है? सॉइल से बफर हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम अगर अमोनियम फर्टिलाइजर डाल देंगे और उसमें नाइट्रिफिकेशन हो तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी। अब ये सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उस एसिड को कितना न्यूट्रलाइज करे। अगर बफरिंग कैपेसिटी इज हाई देन एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड, इफ बफरिंग कैपेसिटी इज लो देन सिस्टम बिकम एसिडिक। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज नाइट्राइट आयन। दिस इज नाइट्राइट, ओके, नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन एंड the oxygen converted into nitrate ion, nitrate ion, okay. Balance में देखें 2NO2 2NO3 and in this case, okay, this second step is rapid. This is the first step. जैसे ही फर्स्ट स्टेप होता है उसके तुरंत बाद सेकेंड स्टेप हो जाता है। तो जो नाइट्राइट बनते हैं दैट quickly converted into nitrate and this process is mediated by mainly bacteria, nitrovector. This is very common bacteria. This is also autotrophic, chemoautotrophic and some heterotrophic microorganisms are also involved. यहाँ भी heterotrophic हैं, यहाँ भी heterotrophic कुछ हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या है? बहुत कम है जो प्रोसेस हो रहा है। मेनली कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोवेक्टर। आप इसको नोट कर लीजिए, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोवेक्टर। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। जैसे ही नाइट्राइट बनता है दैट इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड दिस नाइट्राइट आयंस आर वेरी टॉक्सिक, दे आर टॉक्सिक टू प्लांट रूट। अगर नाइट्राइट आयन एक्युमुलेट होता है देन इट बिकम लीथल टू प्लांट। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर हो जाए कि नाइट्राइट एक्युमुलेट करने लगे तो प्लांट्स के लिए क्या हो जाएगी? टॉक्सिक हो जाएगी। तो सॉइल आर इन एरेटेड कंडीशन, वेल ड्रेन्ड कंडीशन, ऑक्सीजन इज देयर और ये एरोबिक माइक्रोब्स हैं। तो क्या होता है? तुरंत ही अमोनियम नाइट्राइट से कन्वर्ट होगा, क्विकली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। एंड नाइट्रोवेक्टर इज मोर सेंसिटिव देन नाइट्रोसोमोनास इफ वी सी द पीएच। तो अगर पीएच पे हम देखें तो नाइट्रोवेक्टर इज मोर सेंसिटिव फॉर पीएच। तो जैसे ही सॉइल की पीएच बढ़ती है तो क्या होगा? नाइट्रोवेक्टर की एक्टिविटी कम हो जाती है एंड नाइट्रोसोमोनास वर्क उसी रेट पे वर्क करते रहते हैं। उस कंडीशन में नाइट्राइट एक्युमुलेट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंडीशन में नाइट्राइट एक्युमुलेट होता है? जब पीएच बढ़ने लगे, ओके। एंड दिस इज आल्सो
mediated by microbes. Okay, so this is the actually conversion of ammonium to nitrate ion. This process is called nitrification. Okay, so this is the nitrification process in which ammonium is converted into nitrate ion. Okay, and by which this process is carried by microbes, and microbes are chemoheterotrophic, and in first step nitrosomonas and in second step nitrovector. तो ये तो हुआ नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ दिस नाइट्रेट. अब ये जो नाइट्रेट है इसका क्या होता है सॉइल में. तो इन नाइट्रोजन साइकिल वी हैव डिस्कस नाइट्रेट का क्या होता है. नाइट्रेट आयंस आर वेरी मोबाइल, इज सॉल्युबल. ओके, एंड ये देखिए नाइट्रेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. सॉइल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तो क्या होता है, दोनों में रिपल्शन होता है. तो उस रिपल्शन से क्या रहता है, नाइट्रेट आयंस कहाँ रहते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में रहते हैं, एंड दे हैव वेरी हाई मोबिलिटी. तो क्या हो गया, तो प्लांट अपटेक, अदरवाइज लीचिंग हो सकती है. और क्या हो सकता है कि नाइट्रेट अगर एनरोबिक कंडीशन होगी तो डिनाइट्रिफिकेशन हो सकता है. इसको मैंने नाइट्रोजन साइकिल में बताया है. अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो उस लेक्चर को देखें. देन इस नाइट्रेट का क्या करेगा, जब लीच होता है देन इट रीच इनटू ग्राउंड वाटर. तो लीच होते होते ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है, या नहीं पहुंचे नीचे तो कैपिलरी राइज से फिर से दोबारा वापस सॉइल में आ सकता है रूट जोन में. लेकिन जनरली क्या होता है, पर्कुलेटिंग वाटर के साथ जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाए और हमने अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा डाल रखा है या नाइट्रेट फर्टिलाइजर डाल रखा है सॉइल में, तो क्या होगा, लीच करके सब कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा. और उस वाटर को जब हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो हमारी बॉडी में आ जाएगा. और ये नाइट्रेट क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या करेंगे, उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस कर देंगे. इन जनरल क्या फिनोमिना होता है, हीमोग्लोबिन किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. लेकिन अगर ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट है तो क्या करेगा, वो नाइट्रेट रिएक्ट कर देता है हीमोग्लोबिन से, और फिर वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है. और ऐसे केस में जहां पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, अब यहाँ क्या बनता है, मैथ हीमोग्लोबिन बनता है. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज मैथ हीमोग्लोबिनीमिया. ओके, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं क्वेरिंग नहीं कर पाएंगे. तो अब जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऑक्सीजन क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उससे डेथ भी हो जाती है. और स्किन कैसी होती है, ब्लू हो जाती है. तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, डेथ हो रही है बच्चों की नाइट्रेट की पॉल्यूशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड ब्लू बेबी डिसीज या ब्लू बेबी सिंड्रोम. ब्लू बेबी सिंड्रोम. ओके, डेथ हो जाती है, स्किन कैसी होती है, ब्लू हो जाती है. तो किसके कारण है, वो नाइट्रेट के कारण ये पॉल्यूट करता है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नाइट्रेट की. और क्या होता है कि जब ये ग्राउंड वाटर में जाता है या किसी दूसरे वाटर सोर्स में जाता है, किसी रिजर्व में चला जाता है, तो वहाँ जो एल्गी प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और फिर वहाँ किसकी प्रॉब्लम आती है, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम रहती है. तो ये यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम है नाइट्रेट लीचिंग से. तो जब इसकी लीचिंग पढ़ाएंगे तो इसको और डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. तो ये हमने जाना कि इसका फेट क्या है नाइट्रेट का जो बना, प्लांट अपटेक हो जाएगा या लीच कर जाएगा या डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा. अब फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस nitrification. So important one is that this nitrification process start with the ammonium. So important factor is supply of ammonium. First factor is supply of ammonium. So ammonium content is high, then there will be more nitrification. Okay, कहाँ से ammonium आएगा, यदि mineralization is more, if conditions are such that there is more mineralization, it means more availability of ammonium, then there will be more नाइट्रिफिकेशन. अदर फैक्टर और क्या अदर क्या हो सकता है, सप्लाई ऑफ अमोनियम, फर्टिलाइजर एडिशन. तो जो कंडीशन मिनरलाइजेशन को फेवर करेंगी वही कंडीशन किसको फेवर करेगी, नाइट्रिफिकेशन को. ओके, सेकंड इज पॉपुलेशन ऑफ नाइट्रीफायर्स. नाइट्रीफायर्स कौन है, ये माइक्रोस विच आर इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोबलस, नाइट्रोवेक्टर. अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है डेफिनेटली नाइट्रिफिकेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. थर्ड वन फैक्टर इज एरेशन. And these microbes are aerobic. They work under aerobic condition. Okay, if aeration is good, then nitrification process is very good. Okay, so aeration in general soil is 20%. तो अगर aeration 20% है तो क्या होगा, बहुत अच्छा नाइट्रिफिकेशन होगा. और अगर एरेशन जैसे से कम होता जाता है, नाइट्रिफिकेशन भी प्रोसेस कम होता जाता है. तो जो बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो होता है, वैसे तो जैसे 20% से एरेशन कम करेंगे आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कम होने लगेगा. लेकिन जैसे ही 10% से नीचे जाता है
तो नाइट्रिफिकेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। तो वैसे तो ऑप्टिमम नाइट्रिफिकेशन के लिए 20% ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ओके, अभी किससे रहती है ऑक्सीजन, किससे मेंटेन रहती है? एटमॉस्फेरिक एयर से, सॉइल एयर डिफ्यूजन के थ्रू आती रहती है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस पूरा रहता है। अगर एनरोबिक कंडीशन हो गई, पानी भर गया, मान लीजिए पानी हो गया, आप इरिगेशन हो गई, बहुत हैवी रेनफॉल हो गया, तो क्या जाएगा, एरेशन नहीं रहेगा और उस केस में नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अफेक्ट होगा। फोर्थ वन इज मॉइस्चर कंटेंट एंड मॉइस्चर एंड दिस एरेशंस आर इनवर्सली रिलेटेड, क्योंकि सॉइल में जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा एयर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर हम मॉइस्चर में देखें, क्योंकि माइक्रो एक्टिविटी के लिए मॉइस्चर चाहिए, तो जो 1/3 बार जो मॉइस्चर है, 1/3 बार सेक्शन पे, मतलब फील्ड कैपेसिटी पे जो मॉइस्चर रहता है, दैट इज ऑप्टिमम फॉर द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। अब होता क्या है फील्ड कैपेसिटी पे, मैक्रोपोर्स में तो एयर रहती है और माइक्रोपोर्स में वाटर रहता है। तो दो तरह के हम पोर्स पढ़ते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, माइक्रोपोर, मीजोपोर, मैक्रोपोर, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम 2 तरह के पोर्स पढ़ते हैं, माइक्रोपोर एंड मैक्रोपोर। तो फील्ड कैपेसिटी में क्या रहता है, माइक्रोपोर में तो मॉइस्चर रहता है और मैक्रोपोर में एयर। तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है किसके लिए, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए। ओके, देन अनदर फैक्टर इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर देखिए, जितने बैक्टीरिया होते हैं एक अच्छे टेम्परेचर इनको चाहिए होता है, ये जो नाइट्रीफायर्स हैं, एंड टेम्परेचर रेंज 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ वेरी गुड। 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नाइट्रिफिकेशन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में टेम्परेचर कितना रहता है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस केस में क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन क्या होगा, बहुत पुअर होगा। तो वहाँ क्या रहेगा, सॉइल में फिर अमोनियम रहेगा। अगर टेम्परेचर अच्छा है, माना समर सीजन है, तो नाइट्रिफिकेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन विच सीजन मोर नाइट्रिफिकेशन अकर, तो हमारा आंसर क्या होगा, समर सीजन। ओके, दूसरा देखिए कि जब विंटर सीजन में नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कम होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सॉइल में क्या रहेंगे, अमोनियम आयंस रहेंगे, नाइट्रेट बनेंगे नहीं, तो लीचिंग भी क्या होगी, नाइट्रेट की नहीं होगी। तो एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस सीजन में लीचिंग कम होगी। ऑब्वियसली कहाँ होगी, विंटर सीजन में लीचिंग कम होगी, क्योंकि वहाँ नाइट्रिफिकेशन हो ही नहीं रहा है, नाइट्रेट्स बन ही नहीं रहे। तो ये मैंने आज आपको इस लेक्चर में बताया कि व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन एंड हाउ इट इज प्रोसीड इन सॉइल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स। और फिर अब हम जब इसके जो दूसरे प्रोसेस हैं उसको पढ़ेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, लीचिंग पढ़ेंगे, लीचिंग का क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये आपको मैंने बताया, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, नाइट्रिफिकेशन की सिग्निफिकेंस इज प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रिफर नाइट्रेट आयन। ओके, ऐसा नहीं है कि अमोनियम आयन को नहीं लेते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब बोथ अमोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन, बट मोस्ट प्लांट प्रेफरेंस इज टुवर्ड्स नाइट्रेट आयन। तो जब नाइट्रेट आयन बनेंगे तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो चूंकि क्या होता है कि सॉइल्स में एरेटेड कंडीशन रहती है, मॉइस्चर तो हमेशा रहता नहीं है, सारे पोर्ट्स तो हमेशा वाटर से फिल रहते नहीं है, इरिगेशन भी करते हैं या रेनफॉल भी होती है, उसके बाद वाटर एवोपरेट कर जाता है, तो पोर्ट्स में क्या जाता है, एयर आती है। तो इन मोस्ट ऑफ द सॉइल एरेटेड कंडीशन exist and in this aerated condition nitrate ion exist। okay, तो aerated condition है, nitrate ions है, तो प्लांट भी क्या करेगा, इन nitrate ion को एब्जॉर्ब करेगा। दैट्स वाई प्लांट्स हैव प्रेफरेंस टुवर्ड्स नाइट्रेट आयन। अगर कंडीशन एनरोबिक है, ठीक है, उसमें डिनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, अमोनियम आयन रहेंगे। इन दिस सिचुएशन प्लांट्स प्रेफर अमोनियम आयन। तो राइस क्या है, वाटर लॉक कंडीशन में रहता है, वहाँ नाइट्रिफिकेशन होता ही नहीं है, अमोनियम आयन होते हैं, तो राइस प्लांट किसको ले लेता है, अमोनियम आयन को ले लेता है। तो यही रीज़न होता है कि जो वाटर लॉकिंग कंडीशन में हो रहे होंगे या जो एनरोबिक कंडीशन प्लांट होंगे, ग्रो होंगे, दे प्रेफर अमोनियम आयन, क्योंकि वहाँ नाइट्रेट है ही नहीं। अगर एरेटेड कंडीशन है तो अमोनियम इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, और प्लांट क्या लेंगे, फिर नाइट्रेट को लेंगे। हालांकि प्लांट दोनों को ही लेता है, अमोनियम एंड नाइट्रेट। ओके, तो अब अगले लेक्चर में हम इसके नाइट्रोजन साइकिल के दूसरे प्रोसेस पढ़ेंगे, क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन है, अमोनियम फिक्सेशन है, लीचिंग लॉस है, और वोलेटाइजेशन लॉसेस है। इसको मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा, आप इसको अपलोड करता रहूँगा लेक्चर्स को, आप इसको देखते रहिएगा। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।